Okay, so here I am with the very next video for class 9th. The chapter number 6 in the video series, and in the NCERT it is chapter number 13, that is why do we fall ill. So we'll be taking this chapter, but before going into the details of the chapter name is why do we fall ill. This topic itself represents that what will be the various things. You can imagine that actually what will be the various things that we will be taking in this chapter. We will be discussing about health, we will be discussing about illness, we will be discussing about various disease, various causes of disease, various treatments, where we will be talking about principle of treatment and various side effects also related to the treatment. So this is the every just a outline that what we will be studying in this chapter. So let's start off with the chapter, and the very first topic is health. It is a state of complete physical, mental and social well-being. Or being healthy means that one should feel good physically, mentally and socially. हेल्थ का मतलब, या हम किसी भी पर्सन को हेल्दी तब नहीं कहेंगे जब उसे कोई बीमारी नहीं है. वी विल कॉल हिम और हर हेल्दी only when the person is feeling comfortable physically also, mentally also and socially also. If a person is in the complete state of physical, mental and social well-being, only then he or she can be called as healthy. ऐसा नहीं है कि जिस इंसान की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, बट वो सोशली अनहैप्पी है, वो डिप्रेशन में है, वो किसी से प्रॉपरली बात नहीं करता या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, उसमें मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम उसे हेल्दी कह देंगे. नो, इफ द बॉडी इज डिजीज फ्री, दैट डजंट मीन दैट द पर्सन इज हेल्दी. For a person to become healthy, he or she should be in a complete state of physical, mental and social fitness. If we talk about the various significance of the health, that what are the various benefits that one can have from the health, is it make the life joyful, it increases our work efficiency. Definitely अगर हम healthy होंगे तो हमारी work efficiency increase हो जाएगी. It helps us to tackle up with social and mental pressures. अगर हमारी health बिल्कुल proper होगी तो हम जितने भी social और mental pressures आने वाले हैं उन्हें बहुत अच्छे से tackle up कर पाएंगे. So these three are the main significance of having a good health. Next, if we talk about that what are the various factors that affect the individual's health, क्या क्या factors हैं जो किसी भी person की health को affect कर सकते हैं. The very first point is public cleanliness. Public cleanliness is an important factor for an individual health. The possibility of poor health increases if garbage is not collected and disposed. Moreover, open drains also cause health issues. For example, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पर प्रॉपर गार्बेज का डिस्पोजल नहीं है या वहाँ पर ओपन ड्रेन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ड्रेन क्लोगिंग की प्रॉब्लम रहती है, एंड जितना भी सीवेज वेस्ट है दैट इज़ जस्ट being in open grounds. So definitely all such public place illness or garbages that are present in the public places, that will definitely affect the individual's health, and that will definitely promote the possibility of one's health declination. The next factor that if I talk about is good economic conditions and jobs are very important for earning good hygienic food. Yes, अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं होंगी, प्रॉपर जॉब्स नहीं होंगी, तो हमारे लिए हाइजीनिक फूड को अर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. और सिंपल अगेन, अगर हाइजीनिक फूड नहीं होगा तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ. सो गुड इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो वन फैक्टर. Third point, for a good health it is important to maintain good relations with our society. Definitely अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सोशल वेलबींग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारे सोसाइटी में अच्छे रिलेशंस होने ज़रूरी हैं, सो दैट वी कैन हैव सोशल एंड मेंटल फिटनेस. सो गुड रिलेशंस विद द सोसाइटी इज ऑल्सो अ फैक्टर. Fourth factor that affects the health of a person,
social environment around us, for example either it is village or town, definitely it is an important factor for our health. Because if we talk about towns, then definitely the comfort that we are having, जो हमें comfortability या जो techniques या जो comforts हमें टाउन्स में एरियाज में मिलते हैं, वो डेफिनेटली हमें विलेज एरिया में नहीं मिल सकते. सो इस तरीके की टेक्निक्स, इस तरीके के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर हेल्थ. सो दीज आर द मेजर 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द वंस हेल्थ. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन. डिजीज फ्री एंड हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस है? If we talk about a healthy person, if we talk about the healthy state, then it is the state of complete physical, mental and social well-being. हम किसी भी person को healthy सिर्फ और सिर्फ तभी कहेंगे जब उसका physical, mental और social तीनों तरीके से the person will be fit. But disease free का मतलब क्या है? It is the state of absence of discomfort of body part and their function. हम किसी भी पर्सन को डिजीज फ्री सिर्फ और सिर्फ तभी कहेंगे जब उस पर्सन की बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है या उसकी बॉडी के जो सभी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है. डिजीज फ्री स्टेट इज नथिंग टू हैव विद द मेंटल और सोशल स्टेट. इट्स ओनली द हेल्थ विच इज रिलेटेड टू द मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑल्सो. If I talk about a healthy state, then it depends upon the physical and social factors of community also. जो हेल्दी स्टेट है डेफिनेटली उसके ऊपर हमारी कम्युनिटी का सोशल इफेक्ट जो है वो भी पड़ता है. जबकि अगर मैं डिजीज फ्री पर्सन की बात कर रही हूँ तो उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल से है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी और द रिलेटिव्स. अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री. एक जो हेल्दी पर्सन है वो हमेशा डिजीज फ्री होगा ही, क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑल्सो. लेकिन जो डिजीज फ्री पर्सन है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हेल्दी ही हो सकता है कि किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है बट फिर भी वो सोशली हैप्पी नहीं है, वो मेंटली हैप्पी नहीं है, तो हम उस पर्सन को हेल्दी नहीं कहेंगे. तो डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और कैन नॉट बी हेल्दी. Again, in case of healthy, the person is energetic and able to perform efficiently. अगर हम healthy person की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा energetic होता है और वो अपने सारे functions को बहुत ज़्यादा efficiency के साथ perform कर पाएगा. जबकि मैं अगर किसी disease free person की performance की बात करूं तो वो उसके personal attitude पे depend करेगी. उसकी body तो completely fit है but we don't have any idea about his mental or social fitness. तो it will be the question of the person's individual attitude whether he or she is taking interest in doing the work efficiently or not. So these are the main difference between the healthy person and the disease free person. After that, now let's talk about the disease and its causes. सबसे पहले, how can you define a disease? What is a disease? Actually, disease refer to any condition that disturbs normal functioning of living organism. डिजीज वो कंडीशन है जो हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है. दैट कंडीशन रेफर्स टू द डिजीज. द चेंजेस और मॉडिफिकेशंस इन फंक्शनिंग इन द बॉडी सिस्टम गिव राइज टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिजीज जैसी स्टेट आई है, डिजीज कंडीशन आई है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें 2 चीजें दिखेंगी. वन इज साइन, अनदर इज सिम्पटम. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स? इन दोनों टर्म्स को जनरली हम लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल सेम समझते हैं, बट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर टोटली डिफरेंट. दीज 2 टर्म्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इफ आई टॉक अबाउट द symptoms of the disease are the indications that we feel as being wrong or unusual, such as cold, headache, cough, etc. All these indicate that there may be a disease, but they do not exactly indicate what the disease is. Symptoms का मतलब है वो आपकी बॉडी में सिर्फ ऐसे दिखने वाले indications हैं जो आपको ये बताएंगे कि yes, there is something wrong with your body. It may be cold, it may be headache, cough, etc. But the symptoms
never tell you exactly that actually you are suffering from which disease. Whereas on the other side, if I talk about the signs, then the signs of the disease, they give the more definite indication of the presence of a particular disease and also help us to diagnose the disease. लेकिन किसी डिजीज के जो साइन होते हैं वो कंप्लीट डेफिनेट इंडिकेशन होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि यस ये डिजीज आपको है, या इन्हीं साइंस की हेल्प से, ये जो डिजीज के साइंस हैं इन्हीं को पॉन्डर करके, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करके वी कैन हैव द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज ऑल्सो. सो सिम्टम्स और साइंस टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें आपको कोल्ड, हेडेक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेडेक लें, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो भी आपको हेडेक हो सकता है, अगर आपके टूथ में एक है, अगर आपको टूथ में इन्फेक्शन है तो भी आपको हेडेक हो सकता है, अगर आपको वायरल फीवर है तो भी आपको हेडेक हो सकता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी डिजीज ड्यूरिंग विच यू कैन हैव द हेडेक. बट हेडेक इज ओनली अ सिम्टम कि yes there is something wrong with your body, लेकिन it is not a sign that yes if you are having a headache then definitely you will having a viral fever or you will definitely be having a toothache. So headache is just a symptom, it's not a sign, it's not a clear indication to say that you are suffering from this particular disease only. So this is the basic difference between symptoms and signs. Now if we talk about the various categories of disease, then there are two types of disease, acute and chronic. And ये जो हमने disease की classification की है ये इस basis पे की है कि कौन सी जो disease है वो कितने duration of time के लिए हमारी body में exist करती है. तो on the basis of the duration of the infection, disease can be of two types, that is acute and chronic. If we talk about acute disease, then these are the disease that last only for very short period of time, hence they do not cause long term harmful effect on human health. In this case person recover completely. एक्यूट डिजीज उन डिजीज को बोला जाता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहती हैं, और वो थोड़े से टाइम के लिए रहती है इसलिए वो हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग इफेक्ट या बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाल पाती हैं, और इस केस में पर्सन कंप्लीटली रिकवर हो जाता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द क्रोनिक डिजीज, देन क्रोनिक डिजीज आर these are the disease which last for a long time, even as much as lifetime. They cause drastic long term effect on the human health. जबकि chronic disease उन्हें बोला जाता है जो disease हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती हैं, एंड इतना लंबा कि वो पूरी लाइफ टाइम के लिए भी किसी इंसान को हो सकती हैं, एंड उनके इतने ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे उनका ड्रास्टिक एंड वेरी एडवर्स अफेक्ट कैन बी पॉसिबल ऑन द ह्यूमन हेल्थ. अगर मैं एक्यूट डिजीज की बात कर रही थी जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, एक्यूट डिजीज एक्चुअली डू नॉट हैव टाइम टू कॉज द इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. एक्यूट डिजीज के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अफेक्ट कर सके. एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, कफ एट्सेट्रा. लेकिन जो मैंने क्रॉनिक डिजीज की बात की कि वो हमारे पूरे लाइफ टाइम भी हमारे साथ रह सकते हैं और उनका एडवर्स इफेक्ट होता है. रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वो हमारी बॉडी में इतने लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं कि वो हमारी बॉडी में सीरियस इश्यूज कॉज करते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, then TB, that is tuberculosis, cancer, thyroid, these all are the examples of these chronic disease. Now we have studied about the classification of the disease, but now the question arises that actually what are the causes of disease. तो मैं डिजीज के कॉजेज को भी दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ ऑन द बेसिस कि वो डिजीज को कॉज होने में कितना ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. For example, immediate cause and contributory cause. If I talk about immediate cause, these are the real or the primary cause, also called the first level of cause. Various type of organism like bacteria, virus, fungi, etc. that can cause infectious disease are included in this category. इमीडिएट कॉज एक्चुअल में डिजीज के वो कॉजेज होते हैं जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज होते हैं, कि एक्चुअल जिनकी वजह से बीमारी हुई है, डिजीज हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी डिजीज हुई है जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी,
तो दिस इज द प्राइमरी लेवल कॉज, दिस इज द इमीडिएट कॉज जिसकी वजह से हमें डिजीज हुई. दे आर द रियल कॉजेज फॉर द डिजीज. बट अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज की बात करूं तो उसमें एग्जाम्पल्स आएंगे. इनको हम इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स भी कहते हैं. दे डू नॉट लीड डिजीज टू देमसेल्व्स, दे कैन बी कंसिडर्ड एज सेकेंड लेवल ऑफ कॉज. जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है एक्चुअल में वो रियल कॉजेज नहीं होते, लेकिन वो प्राइमरी कॉज को, जो इमीडिएट कॉज होता है, उसको और ज्यादा डैमेजिंग बना देते हैं और डिजीज को वर्स्ट बनाने में हेल्प करते हैं. बट दे आर देमसेल्व्स आर नॉट द प्राइमरी लेवल कॉज टू कॉज फॉर द डिजीज. सो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज आर पुअर हेल्थ ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट. सपोज आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर कर गया है, वो मल्टीप्लाई करना अंदर शुरू करे या ना करे, वो आपको सिक बनाए या ना बनाए, लेकिन उस दौरान अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर वो वायरस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के इफेक्ट करना शुरू करेगा. तो इम्प्रॉपर डाइट इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज टू द प्राइमरी लेवल कॉज. जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपकी बॉडी में कोई इनहेरिटेड, आपके पेरेंट से कोई ऐसी डिसऑर्डर है जो ट्रांसफर हुई है, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द सेकेंडरी और द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. पोवर्टी ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, बिकॉज अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस प्रॉपरली ठीक नहीं होंगे तो आप प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पाएंगे, क्लीन हाइजीनिक फूड एंड वाटर नहीं ऑप्ट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन द लाइक प्रोनाउंसिंग ऑफ द डिजीज. डिजीज को और ज्यादा प्रोनाउंस्ड बनने में ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करेंगे. एक्चुअल में लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज और इकोनॉमिक कंडीशन डेफिनेटली बिकम द थर्ड लेवल कॉज ऑफ द डिजीज. जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या जो पोवर्टी है या लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज हैं, वो एक थर्ड लेवल ऑफ कॉज का भी काम करते हैं. तो एक्चुअली वी आर हैविंग द टू लेवल्स ऑफ कॉजेज ऑफ द डिजीज. द वन इज इमीडिएट कॉज जो प्राइमरी कॉज है, एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द कॉजेज जिनकी वजह से जो प्राइमरी कॉज है, जो इमीडिएट कॉज है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. Very next thing come in the line is infectious and non-infectious disease or causes. इनका मेन मीनिंग क्या है? दे आर, आप इन चीज़ों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. दे आर जस्ट द अनदर नेम फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द इन्फेक्शियस कॉजेज और द इन्फेक्शियस डिजीज. They are also called communicable disease. They are caused by some biological agents जिनको हम pathogens कहते हैं. जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. उसकी कैटेगरी में आते हैं वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड मेनी मोर. They can rapidly spread from one person to another by various means. ये जो कॉजेज हैं, ये जो पैथोजेंस हैं, या फिर हम कहें कि ये जो डिजीज इनकी पैथोजेंस की वजह से होती है, ये डिजीज या फिर ये पैथोजेंस जो हैं ये बहुत रैपिडली किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर, एयर, फूड, इंसेक्ट और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो इन सब मीन्स की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं या फिर ये जो इन्फेक्शियस कॉजेज पैथोजेंस हैं, ये एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं अगर वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ वाटर शेयर कर ले, एयर जो ब्रीद एक्सहेल आउट किए किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे इनहेल कर ले हेल्दी पर्सन, फूड की वजह से या इंसेक्ट की वजह से या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये डिजीज जो है कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज दे कैन बी ट्रांसफर्ड. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, वायरल फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड सबसे लेटेस्ट जो आजकल हम देख रहे हैं दैट इज कोरोना आउटब्रेक, दैट इज कोविड-19 वायरस. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्फेक्शियस कॉजेज एंड द कम्युनिकेबल डिजीज. And if we talk about the non-infectious causes, yani non-communicable disease, the disease that are not caused by infectious agent and are restricted only to the person who is suffering from it. जो non-infectious disease है, actual में वो disease है जो infectious agent के through cause नहीं होती and वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक रहती है. It is restricted to that person only जो उससे infected है.
That means it does not get spread from a infected person to the healthy person. These are called non-infectious disease and non-communicable disease. For example, high blood pressure, heart disease, ये ऐसी disease है जो एक person से दूसरे person में infect नहीं हो सकती, transfer नहीं हो सकती. So these are the two kind of disease, that is infectious disease and non-infectious disease. After this we have infectious agents, जो infection cause करने वाले factors हैं, that are infectious agents. The unicellular or multicellular organism that cause infections are called infectious agents. ऐसे यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं. एंड द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैथोजन. जो मैंने अभी ऊपर बताया, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोई भी डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन्स कहते हैं. एंड दे आर क्लासिफाइड वाइडली इनटू मेन 5 कैटेगरीज इसमें होती हैं: वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी. एंड ये आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में प्रॉपरली पढ़कर आए हैं. The purpose of dividing the infectious agents into the different categories is to decide the kind of treatment to use, because the same drug will not work against a microbe belonging to the different group. Definitely. क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है कि हमने इन इन्फेक्शियस एजेंट्स के, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, पैथोजेंस के अलग अलग 5 कैटेगरीज क्यों बनाए हैं. इसका सबसे बड़ा रीजन यही है ताकि जो डिजीज बैक्टीरिया से कॉज होती है उनके लिए ड्रग अलग बनाया जा सके, जो डिजीज वायरस से होती हैं उनके लिए एक अलग ड्रग बनाया जा सके. बिकॉज डेफिनेट सी बात है, जो डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं उस डिजीज के ऊपर वो ड्रग काम नहीं कर सकता जो वायरसेस, फंगी या प्रोटोजोन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है. सो जस्ट टू हैव ईज इन द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स वी हैव differentiated the pathogens into different categories. So in the next video we will study about the means of spread of these disease, कि ये जो सारी disease हैं इन्हें spread किस किस तरीके से, किस किस agent के through करते हैं pathogens, कैसे ये हो सकती हैं. We will study about that in the next video.